बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum dear students. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous video we solved chapter number 3, in which we discuss exercise number 3.6, in which we discuss also to find the value of a log by using characteristic and by using Mantessa. So today we will start our new chapter, chapter number 4, which is most important according to the board pattern, in which totally it includes 5 marks in a board pattern. So in chapter before starting the chapter number 4, I will teach you about some important terminology which is used in this chapter. First of all, the first thing is algebraic expression. The chapter name is also a algebraic expression. So first we discuss the term algebraic expression. तो algebraic expression क्या है उसके बारे में हम आपको बता दें कि algebraic expression क्या होती है. Algebraic expression ये है a collection of a constant and a variable. लफ्ज़ में a word constant is used and word variable used. So first we discuss constant. Constant are those numbers whose value remain unchanged. Value remain unchanged. And what is variable? It's opposite to the constants. Those values which do not remain change. Value change according to the given condition. So constant a number whose values remain unchanged. For example 5, 6, 0 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 2000 तक जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं कांस्टेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो वेरिएबल क्या है? दोज वैल्यूज विच आंसर मे वेरी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस. कभी यहाँ पे x का आंसर 3 आ रहा होगा, x का कभी आंसर किसी क्वेश्चन में 5 आ रहा होगा, किसी में 0. तो क्या है? Any value which change according to the given condition of a questions, so it is called variable and it is called constant. By combining these two terminology, in constant, a collection of constant and variable which is joining by the fundamental operation. Loves fundamental operation. Fundamental operation. What are fundamental operations? The fundamental operations are plus, minus, multiply, divide, roots and power. These are called fundamental operation. We combining these two terminology by using fundamental operation, then the given answer is called algebraic expression. For example, 5 plus x square
plus y square. So here you will see that these three terms are combining by using a symbol. Symbol means fundamental operation. Which symbol is here? Use plus. So the answer is 5 plus x square plus y square. By using fundamental operation, we will combining these two terminology, then the output become a algebraic expression. So algebraic expression here, the next example is ax square plus byx plus c is equal to 0. It is also called a algebraic expression. ये algebraic expression किस तरह है और किस तरह पता कि इसके अंदर हमने कांस्टेंट नंबर को भी मिलाया और वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स को भी क्या किया, कंबाइन किया बाय यूजिंग दिस साइन. कौन सा साइन यूज़ किया? प्लस का. आप चाहे माइनस भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर. तो ये देखें, इनमें से कोई भी पावर ऑफ ऑपरेशन जो है, यानी कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन आप करवा कर इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पे बेस करता है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है पॉलिनोमियल की. व्हाट इज पॉलिनोमियल? अब ये देखें, एक वेरिएबल है 5x स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट टर्म है, एक टर्म गिवन है. क्या गिवन है? टर्म. इसमें कितनी टर्म गिवन है? 1 2 3. तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करने से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं वैल्यूज़. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. इस तरीके से आप यहाँ कहेंगे ये थर्ड टर्म है. इसके तीन टर्म दी गई हैं 1 2 3. तो प्लस माइनस लगाने से भी क्या होता है, टर्म आपको पता चल जाती है कि हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल मैंने बता दिया. ठीक है, अब आगे के पास ये 5 है. 5 इज आल्सो पॉलिनोमियल. कैसे? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी पावर जब कुछ यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूँ तो इट मीन्स के 5 लिखा. एनी वेरिएबल हुज पावर बिकम अ 0, सो द आंसर इज अ 1. एनी बेस विच पावर इज 0, द रिजल्ट मे कम 1. तो 5 1 जा 5. 5 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. सो एग्जाम्पल फर्स्ट ये देखें, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एग्जाम्पल है. 5 भी क्या नंबर, वो भी क्या आपके पास एग्जाम्पल है. इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल है 3x माइनस 1/3. तो ये कितनी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. वेरिएबल भी आ गए, नंबर भी आ गए. कोई भी नंबर गिवन हो या अल्फ़ाबेटिकली कोई नंबर गिवन हो तो आप उसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है. सेकंड जो चीज़ होगी वो नॉन पॉलिनोमियल होगी. नॉन पॉलिनोमियल. अब नॉन पॉलिनोमियल में दो बातें आती हैं. देयर आर टू मेन पॉइंट्स included non-polynomial. The first point is rational and the second part is irrational. Irrational. As I told in chapter number 1, what is rational and what is irrational. Any value which can be written in a division form is called rational number, and any term which cannot be written as in division form, so it is called irrational form and it is called rational form. ऐसी वैल्यू जिसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें. लेकिन जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ऐसी वैल्यू जिसमें वेरिएबल डिवाइड में आ जाए, जैसे 1/x, जैसे कि 1/y प्लस y. तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है. ये देखें, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है. इन कंडीशन में वेरिएबल अपाउन में आना चाहिए, अपाउन में नहीं, नॉमिनेटर में आना चाहिए. रैशनल निकालते वक्त जो आपके पास जो है वो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आना चाहिए. इररेशनल क्या चीज़ होगी? इररेशनल मीन्स कि अगर यही अल्फ़ाबेट को अगर मैं रूट में लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, इररेशनल. क्या बन जाएगा, इररेशनल. 3 इज द इंडेक्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर. सो 3 इज द इंडेक्स ऑफ एन x माइनस वाई का होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर की पावर, ये इंडेक्स.
और रूट के अंदर क्या लिखे गए अल्फ़ाबेट, अगर रूट में अल्फ़ाबेट लिखे जाएं तो वो इरेशनल बन जाएंगे यानी रूट में, और यही अगर अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में आ जाए जैसे कि 3/x 5/y 3x², तो यहाँ ये देखें कि अल्फ़ाबेट जो है वो डिनोमिनेटर की होने की वजह से क्या कहलाएंगे रैशनल कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 वी सेपरेट पॉलिनोमियल रैशनल इन रैशनल इन अ गिवन एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट करना है पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल क्या है। अच्छा, दूसरा सवाल भी इसी पे बेस करना है। इन क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट आल्सो आ separate polynomial and polynomial in case of a polynomial, then how many variables are given in this expression। ये आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने इसी तरह कंप्लीट करना है, ये होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टोटल कितने पार्ट हैं जी 1 से लेकर 9 तक, ये आपने कंप्लीट करना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1 in which we separate polynomial and non-polynomial. In case of polynomial, then how many variables are given in this expression? You also write the variables in this polynomial. For example, 3 minus x 1/x is ka part 1. Question number 2 part 1 3 minus x. Here first of all you check this, in denominator there are, it is a variable which called x. So in rational definition, a variable which are in a division form, then it is called rational number, not polynomial. It means it is a non-polynomial. So we write it a full form non-polynomial. Next example, example number 3 देख लीजिए। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3xt क्यूब minus 4xyt, in which first of all you check either a polynomial expression or non-polynomial expression. Here there are not a value which is written in a division form, so we easily decided that it is a polynomial. It is a polynomial. So write also a variable. Here how many variables are there? There are 1 x t y. So x, and how many variables? Here the quantity of a variable is written, right? Variable, how many variable? X 1 2 3 variable. If the question are polynomial, then you write a variable quantity. Otherwise, in case of non-polynomial, you will not mention here a variable quantity. So question number 2 complete. Question number 3, in which you will easily decide that how many terms are there in a polynomial case. There are 4 types of polynomial. Number 1 monomial, number 2 binomial, number 3 trinomial, number 4 multinomial. What is monomial? Here monomial, then binomial, then trinomial, then multinomial. What is monomial? If in a given expression there are only one term, there is only one term in a given expression, then we will call it a monomial expression. For example 5, for example 3x, for example 7x. Here all these values are called monomial because there are only one term included in this expression. What is binomial? If 2 terms are there, 2x plus 5, it is called binomial.
3x cube plus 1, it is also binomial. 5x 1/3 plus 1, it is also a binomial. 2x square plus 5 1/4 plus 2, it is also called a binomial because here are two values which can easily be calculated by addition. So the result become a whole number, only one number comes to an end, the result is a 1 and the first value of 2x square divided by 5, here is another value. So totally two values are getting from this result and we called it a binomial. इसकी मिसाल यूँ समझेंगे, ये देखिए ये कितनी टर्म, बज़ाहिर तो आपको 3 टर्म दिखाई दे रही हैं लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ किसमें, होल में, यानी डिजिट है, ये नंबर है. इन नंबर्स को आप आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस. तो इनका जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, वो एक नंबर और ये वाला एक नंबर, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, 2. तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल. व्हाट इज ट्राइनोमियल? इफ एन एक्सप्रेशन is written included 3 terms, 3x square 5 plus 5x minus 1. Here 3 terms are given, so we called it a trinomial. What is multinomial? At least an expression which consists at least more than, at least 3, at least 4 कर लें. एक ऐसी मल्टीनोमियल जिसमें गिवन टर्म जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा हों. लेट्स सपोज 3x4 प्लस 4x2 प्लस 3x1 प्लस 1. तो 3 यानी 3 टर्म को तो आप ट्राइनोमियल कहेंगे, लेकिन ये यहाँ पे 4 टर्म भी आ गई तो टोटल आपको 3 से ज़्यादा के जो अगर आ जाएँ टर्म तो उसको हम मल्टीनोमियल कहेंगे. अगर 3 टर्म आएंगी तो ट्राइनोमियल कहेंगे, 2 आएगी तो बाइनोमियल कहेंगे, 1 टर्म होगी तो मोनोमियल होगी. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा, जिसका होमवर्क में आपने 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करना होगा. ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 वी कैलकुलेट द डिग्री. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इन अ गिवन एक्सप्रेशन ऑफ एनी वेरिएबल, either a variable in a single form or a product form. If it is in the form of product, then we added the both power of that variable. We add the power of that variable in case of the product. For example, x cube plus u square into t. फर्स्ट x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर y की पावर 5 पाई 3 इज द इंडेक्स ऑफ a माइनस b का होल क्यूब. ये लीजिए, हियर वी राइट द डिग्री ऑफ दैट वैल्यूज. x, द पावर ऑफ x इज 1 एंड द पावर ऑफ y इज 6. विच वेरिएबल हैव अ हाईएस्ट पावर? So the answer is y. The power of y is highest than a power of a x. So the degree is 6. Highest power is called a degree. Here x की power 6, x square, y की power 4. Here the बज़ाहिर तो आपको ये पावर बड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन डिग्री में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की वैल्यूज़ होंगी, यानी प्रोडक्ट में जो वेरिएबल लिखे होंगे उनकी पावर को आप क्या करेंगे, ऐड. तो मैंने इन दोनों की पावर को, हाँ रूल को फॉलो नहीं करना यहाँ. बेशक रूल को आप ये करेंगे सर रूल पावर तो तभी ऐड होती हैं जब क्या हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई पावर ऐड. लेकिन डिग्री निकालते वक्त वेरिएबल का सेम होना भी ज़रूरी नहीं है, बस वो प्रोडक्ट में लिखे हों. तो प्रोडक्ट में जो भी वेरिएबल लिखे जाएंगे उनकी आप पावर को ऐड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 7 और इसकी पावर क्या है, 6. तो विच वन इज़ अ हायर वन, 7. तो डिग्री क्या हुई इसकी, 7. यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी. हियर पाई इज अ नंबर, सो द डिग्री ऑफ अ नंबर, सो द डिग्री ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज बी 0. किसी भी नंबर की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है.
कैसे पता चला? अब ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसके साथ जब कुछ नहीं है इसका मतलब x की पावर यहाँ क्या आती है 0। अगर मैं x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 22/7, तो 22/7 ये है। इट मीन्स के अगर एक नंबर लिखा है ना तो उसमें उस वेरिएबल की पावर क्या आती है 0, इसलिए वो इसकी डिग्री क्या बनी 0 बनी। अच्छा जी, अगर if the index and the whole power of the value are same, then cancelling the result is a square minus b, a square minus b. Here what is the maximum power of which variable have a maximum power? So the answer is a. The power of a is 2, so the degree become a 2. Here exercise number 4.1 complete, in which question number 1, 2, 3, 4 discuss. First question, we separate polynomial, polynomial, rational and irrational, polynomial, rational, irrational. In question number 2, separate polynomial and non-polynomial. In case of polynomial, we write down the variables which are included in this expression. In question number 3, we find the terms, how many terms are given in polynomial. There are 4 types of polynomial are given in that expression: polynomial, monomial, binomial, trinomial and multinomial. In monomial there are only one term included, which an expression which consists of one variable is called monomial. What is binomial? Polynomial. Binomial means an expression which consists of only 2 term is called binomial. What is trinomial? Trinomial is consists of any 3 term, so it is called a trinomial. What is multinomial? If any expression which consists at least 4 term, so the result become a multinomial. So in question number 3, in question number 4, we find how to calculate the degree of a given expression. The degree is the maximum power of those variable which are given in a given expression. So in product form, the variable are not like, not same, so we will find a degree, so we will add the power of these variable. The result become a 7. So 7 is higher than a 6, so the degree become a 7. How can we find the degree? The higher, the adding the values of a power. In exercise number 4.2, in which we will discuss ascending order or descending order. What is ascending order and what is descending order? In exercise 4.2, the question number 1 is write down the given expression, given algebraic expression in ascending order with respect to A, with respect to B, with respect to C. यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन पार्ट्स दिए गए हैं उसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है with respect to given variable. Which one is a given variable? Here the given variable is A. So for example, question number 1, part 3, x square plus 4ay square minus 5a4 plus 2a square xy माइनस 2a क्यूब एक्स स्क्वायर. तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ए के लिहाज. असेंडिंग ऑर्डर में अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगी, इस किस वेरिएबल को आपने देखकर असेंडिंग में लिखना ए. तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करें कि आपने असेंडिंग ऑर्डर कैसे कहते हैं, यानी लोअर छोटे नंबर से कहाँ लेके जाना है, बड़े नंबर की तरफ. यानी जिस वेरिएबल की बात की जा रही है उस वेरिएबल की पावर को आप देखेंगे. मिनिमम पावर से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाना असेंडिंग कहलाएगा. डिसेंडिंग क्या होगा, हायर पावर टू लोअर पावर.
और असेंडिंग लोअर पावर टू हायर पावर। अब यहाँ असेंडिंग है मीन्स ए की जो सबसे लोएस्ट पावर है वो सबसे, यानी उस टर्म को ढूंढें और उससे पहले लिखेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 3। देखें 1 2 3 4, यहाँ पे ए नहीं है, इट मीन्स, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई, यहाँ पर ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू अल्फ़ाबेट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर उसकी पावर क्या थी, 0 थी, इसलिए यहाँ पे ए नहीं है। यानी जिस भी वेरिएबल की आपने असेंडिंग ऑर्डर, यानी जब भी किसी वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले ये देख लें कि कहाँ कहाँ ए है। जहाँ जहाँ ए अब नहीं है वहाँ उसका मतलब है कि उसकी पावर क्या होगी, 0। तो ये आप खुद से स्टेप लिखेंगे, कॉपी द स्टेप 5 ways, अगेन क्वेश्चनिंग द कॉपी। ठीक है, अब आप देखें 0, अब असेंडिंग में क्या होगा, लोअर, लोएस्ट पावर ए की क्या है, 0, 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 3। इस तरीके से आपने अरेंज करके लिखना। मीन्स सबसे पहले ये आएगी ए स्क्वायर, ए की पावर 0 एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू आएगी 1, 1 के बाद 2, उसके बाद ये वाली वैल्यू ए क्यूब एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाली वैल्यू आएगी। अब आप सेंडिंग कैसे चेक करेंगे, देखें 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। इस तरीके से आपने असेंडिंग ऑर्डर में से कंप्लीट करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए। इस डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया गया। 1 में सारे जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर के सवाल हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पे लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। जो भी सवाल में वेरिएबल गिवन होगा उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। अच्छा जी, इसमें यूँ समझ लें कि लेफ्ट से राइट जो पावर है, द पावर विल डिक्रीज, लेफ्ट से राइट पावर डिक्रीज होगी। मीन्स वही बात है कि बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाना। इसका क्वेश्चन देखें, 4y की पावर 4, ये पार्ट होगा उसका 8, क्वेश्चन नंबर 2 का 8, ताकि डिवाइड वाली वैल्यू को भी समझिए। 32y स्क्वायर, 64 y की पावर 4 माइनस 1 आवर, 28 आवर y की पावर 2। आगे कंडीशन लिखा कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y का आंसर कभी भी 0 नहीं आए। अब इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग में जो हायर पावर है, यानी हायर पावर टू लोअर पावर, हायर पावर ऑफ एनी वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल दिया, y, तो हमने y के लिहाज से देखें। यहाँ y की पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर ये, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ y की पावर क्या है, 0, फिर y स्क्वायर, y की पावर 4 y, तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 4, a की पावर 4, 4 के बाद फिर 2, फिर 0। याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अपॉन में लिखी होगी वैल्यू, उसे आप पहले नहीं उतारेंगे, वो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी वो लोएस्ट वैल्यूज़ होंगी, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपने सिंपल वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया डिसेंडिंग में। अब आपने करना क्या होगा, उस वाली वैल्यू को भी सर्च करें। डिवाइड में जब आप भी डिसेंडिंग को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये देखेंगे यहाँ डिवाइड में क्या लिखा, y की पावर 4 लिखा और यहाँ y की पावर 2। इट मीन्स जब ये डिवाइड में होते हैं तो इट मीन्स की पावर सबसे छोटी, यानी जो सबसे छोटी पावर होगी वो क्या होगी, 4 होगी। कैसे होगी ये देखिएगा, इसको मैं तरतीब दे देता हूँ। 64 प्लस का 4 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और ये प्लस का 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब बताएं माइनस का 4 बड़ा है कि माइनस का 2, सर माइनस का 2 बड़ा है, क्योंकि ये 0 के बिल्कुल क्या है, करीब करीब, और -4 0 से बहुत ही दूर है। तो जो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी ये देख लें माइनस का 4 है और यहाँ क्या माइनस का 2, तो माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है, वो 4 है, तो इसलिए ये वैल्यू सबसे छोटी मीन्स ये सबसे एंड में आएगी। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, जो डिवाइड में जिस वेरिएबल की पावर सबसे छोटी है वो पहले उतार लें। आसान टेक्निक बता रहा हूँ।
और यह इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल कर लेने। और इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 5 तक आपने कंप्लीट कर लेने। तो क्वेश्चन नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट से, एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड you will find the you will write the algebraic expression in a descending order with respect to a given variable. Clear है? In case of descending order the power will decrease from lower to right, left to right, sorry. जब if you convert, if you change the given expression in descending order, first of all you will check the higher power. Which one is the higher power? Highest power. The highest power 4. So move down from left to right, the power will also decrease. तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी कंप्लीट होगी। तो 4.2 में हमने क्या सीख लिया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। 4.1 में आपने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी और उसमें क्या क्या थी, उसमें पोलिनोमियल, नॉन पोलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट, डिग्री का कॉन्सेप्ट, टर्म का कॉन्सेप्ट सीखा। अब आप बात करते हैं जी वैल्यू ऑफ algebraic expression. How can we find the value of algebraic expression? 4.3 में हम algebraic expression की वैल्यू निकालना सीखेंगे by putting the values of a given variable. अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 1 का 5 क्या लिखा हुआ जी? 3x² अपॉन z माइनस BC प्लस 6 प्लस 1। और यहाँ पे इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू जो है वो -1 है, z की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1/3। इन तमाम वैल्यू हियर इट इज़ अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ हेडिंग solution. Then finding the value of this algebraic expression. How can we find the value of this algebraic expression? By putting the given variable values. So here write a sentence putting the values, putting the value. So first of all write a equal symbol, then write a 3. What is the value of x? The value of x is 2 whole power 2. What is the value of y? The value of y is equal -1 over the value of z is 3. So write a sign minus. What is the value of b? The value of b is 4. The value of c is 1/3 whole divided by the value of x 2 plus 1. So here the square of 2 is 4 minus 1/3 minus 4 ones are 4. Nominator multiply by nominator 4/3 whole divided by 2 plus 1 3 cancel 4 ones are 4 minus 4, cancelling the nominator and denominator, then multiply by these both number, the multiply 4 multiply by -1, the answer is -4. Then write a sign minus 4/3, write a 4/3 सिंपल फॉर्म एंड द होल डिवाइड में जो नंबर है वो क्या है 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए, जब होल डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उलट कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगी 1 multiplied by 3 minus 4 1s are 4 3 3s are 9 3 3s are 9। देन यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग LCM here only 1 is down, यानी जब कुछ नॉमिनेटर के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1,9 3 3s are 9 3 1s are 3 3 multiplied by 3 is equal to 9 3 3s are 9। draw a line which is called whole divide में क्या आ जाएगा 9, जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ क्या है 1 का टेबल पढ़ा जाए कि 9 आ जाए, 1 9s are 9
9 तक पढ़ा वो 9 यहाँ लिखा गया, जहाँ तक टेबल पढ़ के ये 9 मिल रहा है वहाँ तक आपने लिखा। ये 1 का टेबल 9 तक पढ़ा के 9, और ये जो इसके ऊपर वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस। अब इस 9 का टेबल वहाँ यहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक पढ़ेंगे कि 9 1 ज़ा, तो कहाँ तक पढ़ा 1, वो 1 यहाँ लिखें, और जो इसके ऊपर नंबर है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, होल डिवाइड बाई 9। दोनों के साथ साइन माइनस की है। जब भी किसी भी वैल्यूज़ के साथ साइन नेगेटिव की हो, तमाम वैल्यूज़ के साथ अगर साथ वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव की हो, तो इन दोनों को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, माइनस के 40 और 9, ये इसका आंसर हो जाए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना सीख ली। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। we putting the values, we put all the values and got the answer minus 40 over 9, in which you take LCM of this number, and you understand easily. Then how can we find the LCM? In this question, practice the LCM much more. Now in question number 1, the remaining question is 1 to question number 1 के कितने पार्ट आपने मुकम्मल करने हैं? 1 से लेकर 6 तक मुकम्मल करने हैं आप जी। 4.3 में ही क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अब क्वेश्चन नंबर में जो हैं 2 3 4 5 सेम है। वैल्यूज दिए होंगे उसको पुट करेंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें से एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ s is equal to n over 2 curly bracket 2a plus n minus 1 into d, the value of n, find the value of s. If the condition, if s is equal to n over 2 bracket 2a plus n minus 1 bracket close d, then find the value of s if when n is equal to 5, a is equal to 2 and d is equal to 3. So putting all these values in a given algebraic expression n over 2, and what is the value of n? The value of n is 5. What is the 2 remains same, curly bracket 2, a, what is the value of a? The value of a is 2. Here write a sentence putting the values. The value of a is 2 plus the value of n is 5 minus 1 into d. S 5 over 2, 2 2 the 4, 5 में से 1 गया 4, ब्रैकेट में 3 लिखा, curly bracket s 5 over 2, 4 plus 4 3 is 12. Now add these both number. The answer is 4 plus 12 is 16. So you will check here that which number are easily divided, can be cancelled. 2 1s are 2, 2 8s are 16. So s is equal to 5 multiplied by 8. 5 multiplied by 8, the result is 40. So the value of s is 40 by putting all these values in a given condition. Here question number 2, question number 3, question number 5 is your homework, and also complete the exercise number 4.3. Now discuss exercise number 4.1. ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ, थोड़ी लेंथी है, पहले 4.5 और 6 को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए इसी एक्सरसाइज। 4.5 में क्या क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी रिमाइंडर थ्योरम बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मालूम करना है बाय मींस ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आपने इसका आंसर मालूम करना। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, उसका तीसरा पार्ट देखें। x की पावर 4, एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4 2x2 plus 3x plus 3 is divided by
x minus 3. So here there are two algebraic expression where let's see which expression have a maximum power. The first one is first expression is that which have a higher power. So the first expression is divided by the second expression. In second expression, where you see that the variable x whose power is 1. So divide by x minus 3. X minus 3 is a factor of this. ये नहीं factor है. So first of all, write a hiding solution. Then suppose the first expression is a polynomial of x. So suppose the expression is polynomial of x. x4 the power 2x square plus 3x plus 3. Now using the second expression, with the help of second expression, we will find the value of x by considering it a 0. Here consider x minus 3 is equal to 0. So why we consider it a 0? Because it is divided by, this expression is divided by x minus 3. So it is a factor by which it can easily be divided. X minus 3 is equal to 0, s is equal to 0. So here we get an answer of x is equal to 3. Now putting this value of x in a given expression. So polynomial of x means x, the value of x is 3 की power 4 so p over 3 की power 4 81. सबसे पहले पावर कैलकुलेट करें. 3 का स्क्वायर 9, 3 3 is 9 plus 3. Now p3 polynomial of 3 81 minus 9 2 9s are 18 plus 9 plus 3. दोनों को माइनस कीजिएगा. पहले तो इन्हें प्लस, ये कितना आ जाएगा जी 12. इलेवन में से 8 गए 3 7 8 है. 7 में से 63, ये आ गया 63 प्लस 12. इन दोनों को ऐड करें 75. हेयर 75 इज अ रिमाइंडर. इसी के साथ आपने क्या लिख देना है, रिमाइंडर लिख देना है. क्योंकि इन क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इस सवाल में पूछा क्या था कि आपने रिमाइंडर मालूम करना है बाय द हेल्प ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जो डिवाइड का फैक्टर होगा उसको आप सपोज करोगे 0 के बराबर, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल कर गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देनी. ये जो डिवाइडेड के बाद वाला फैक्टर है, इसकी मदद से आपने x की वैल्यू निकालनी है. तो जितने भी पार्ट होंगे उन सब में पहले तो लेट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ x का, फिर कंसीडर करेंगे ये जो फैक्टर है ना डिवाइड वाले के बाद, इसको 0 के सपोज करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. इसकी वैल्यू निकालेंगे x की. उस x की वैल्यू को गिवन जो आपने लेट किया उसमें पुट कर देंगे. पुट करने के बाद जो भी आंसर आया, अगर आंसर 0 आ जाए, क्या आ जाए, अगर आंसर 0 आ जाए तो आप कहेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू. और अगर आंसर 0 ना आए तो हम कहेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, in which you decide whether the given algebraic expression are true or false. If the remainder of a given expression by putting all the values क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 मुकम्मल हो गया जी. 2 में है डिसाइड करना है क्या, वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स बहुत इजी है. क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1,
x minus 3 is a factor of 2x cube minus 6x square minus 5x plus 50। वो ये कह रहा है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? वही काम है कि इसको आपने किसके सपोज कर लेना है, पॉलिनोमियल के सपोज कर। पॉलिनोमियल को सपोज करके आल्सो कंसीडर x minus 3 is equal to 0. Here minus 3 shift to right hand side, the answer is positive 3. Now put the value of x in a given algebraic expression. इसके अंदर आप 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर, if the remainder is any number, the statement is false. और अगर रिमाइंडर, if the remainder answer is 0, so we can say that the statement is true. काम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सिर्फ एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा एंड में। अगर आंसर 0 आ गया, तो आप ट्रू लिखेंगे। अगर आंसर कोई एक नंबर आ जाए, जैसे यहाँ 75 आ गया, तो ये फॉल्स है, फिर ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जो होमवर्क में करना है वो कौन से पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिस के लिए? 2, 3 एंड 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही काम है। इसमें हेड ले लें, शो डैट, जब बुक सामने रखिएगा, बुक का पेज नंबर है जी 84, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, शो डैट 3 इज़ अ रूट। बेसिकली 3 क्या है? इस गिवन क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने क्या करना होगा? 2 इज़ अ रूट ऑफ, ये लिखा होगा, देखिए 2 इज़ अ रूट, 2 इज़ अ रूट ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ x है वहाँ इस 2 को पुट कर दें और देखें इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आंसर 0 आ गया, इट मीन्स शो डैट हो गया, क्योंकि शो डैट लिखा है पहले से, इसलिए इसके आंसर हमेशा 0 यानी 0 के बराबर आएंगे, राइट हैंड साइड के बराबर आएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर 2 पार्ट है, दोनों के दोनों आपने कंप्लीट करने। 4.5 के बाद 4.6 की बात करें। इन 4.6 हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने क्या सीखनी है? वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। उसके लिए एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ज़रा समझ लीजिए। इसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो फाइंड, क्वेश्चन लिखा होगा, राइट द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये लीजिए, प्रोडक्ट मालूम करना है। अब प्रोडक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ। 2 माइनस एक्स क्यूब, 2 प्लस एक्स क्यूब, 4 प्लस एक्स की पावर 4, 4 प्लस 16 प्लस एक्स की पावर 12। यहाँ सोल्यूशन, राइट द हेडिंग solution. First of all, take a 2 product, then multiply by it. What is the answer of this both product? First of all, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। The value of first bracket is 2, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2x क्यूब। सिंपल कर दें, इसको फार्मूले की मदद से भी करा देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। If you see here, in first bracket there are 2 values, in second bracket there are also 2 values, and these 2 values are identical, same. The difference between them is sign. In first bracket there is a negative sign, and in second bracket there is a positive sign. So
In our mind there is a formula. If the values are same, the difference between them is only sign. Then we follow the formula a square minus b square. तो फर्स्ट वैल्यू ए, जब दो वैल्यूज हों, दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो, फर्क सिर्फ किसका हो, साइन का, तो फार्मूला बनेगा, पहले भी पढ़ा है 2.78 में, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अप्लाई. अब इस फार्मूले को इस फार्मूले को इस वैल्यूज़ पर अप्लाई करें. फार्मूला जो है ये ओपन फॉर्म में है, यानी जो क्वेश्चन की भी वैल्यूज़ हैं वो भी ओपन फॉर्म में, लिहाजा क्वेश्चन की वैल्यू को फार्मूले की वैल्यू में क्लोज करना है. फार्मूले में क्लोज करें. ए क्या है, ए की जगह ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. करली ब्रैकेट लगा दें, ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दें. इस क्वेश्चन में मैं एक और मिस्टेक बता दूं, आपकी बुक में यहाँ पे माइनस माइनस के साइन होंगे, इनको प्लस प्लस लिख दें. क्या लिख देंगे, प्लस. 2 का स्क्वायर 4, एक्स 3 2 जा 6, इवन 4 प्लस एक्स की पावर 6, 16 प्लस एक्स की पावर 12. अगेन अप्लाइंग दिस फार्मूला. देखें दोबारा वही फार्मूला में, फर्स्ट वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू 4 है, यहाँ सेकंड वैल्यू बी एक्स क्यूब है, यहाँ भी सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 6. फ़र्क किस चीज़ का है, साइन का. तो यहाँ अगेन फार्मूला यूज़ करें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस पर अप्लाई कर दें फार्मूला. 4 स्क्वायर और एक्स की पावर 6 होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट, और ये वाला फैक्टर एज इट इज़ उतार लें. क्या बोला, 16 प्लस एक्स की पावर 12. 4 स्क्वायर 16, 6 2 ज़ा 12, 16 प्लस एक्स की पावर 12. फिर देखें दोबारा वैल्यू सेम है, फ़र्क किस चीज़ का है, प्लस माइनस का. इस पर दोबारा फार्मूला बना दें, लिखें यहाँ पे बार बार, जितनी बार पूछा जाए उतनी बार आप फार्मूला लिखें. ए का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, बी एक्स की पावर 12 और उसके ऊपर होल स्क्वायर. 16 का स्क्वायर क्या आता है, 256, 12 2 ज़ा 24. ये इसका आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज 4.6 में सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. इस तरीके से आप उसे मुकम्मल करेंगे. लास्ट एक्सरसाइज हम उसको 4.4 का डिस्कस कर रहा हूँ जी. स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 4.4. ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 में हमने क्या सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब ऐड होते हैं, कब माइनस होते हैं, कब मल्टीप्लाई होते हैं, कब डिवाइड होते हैं. तो इधर एक चीज़ समझ लें, वो ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ. उसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. किस किस को ऐड करना है, देख लीजिए. इसका 2 देखें, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस के 2. फिर लिखा होगा 2xy स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3 एंड माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1. 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं. इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है. सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, देन कॉपी द फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़. देन फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज़ कॉपी करना है. जब इसके नीचे अब आपने 2 मेथड होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ऐड करना होता है, एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मींस इसी तरह आपने बीच में साइन लगा के प्लस करना शुरू कर दिया लाइन वाइज. और वर्टिकल क्या होगा, एक के नीचे एक, इस तरीके से आपने उसको लिखकर सेम. वर्टिकल में ये देखना होता है कि सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम अल्फ़ाबेट आना चाहिए. इन सेकंड गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट वैल्यू इज 2x, वेयर इज x, सो राइट हियर दिस टर्म
यानी सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम को उतार, इसके साथ जब कुछ नहीं है तो प्लस होता है। व्हाट इज द सेकंड वेरिएबल वाई स्क्वायर, वेयर इज वाई स्क्वायर, हियर, सो राइट वाई स्क्वायर बिलो वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर, हियर 3x स्क्वायर, -4y, -4y, नंबर के नीचे नंबर को उतार दें। सेकेंड एक्सप्रेशन को इस तरीके से उतार लें। थर्ड क्या है, -6x स्क्वायर, सेकेंड क्या है, -2y स्क्वायर, -2y स्क्वायर एंड -1। ये नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, उससे 0। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने में देखें ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 4 और 3 7, 7 में से 6 गए 1x स्क्वायर, प्लस 3 है, ये -1 -2, -1 -2 कितने होते हैं, -3, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इट मीन्स यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अच्छा जी, इधर देखें -6 है, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या 0, तो 6 में से 2 गया तो 4 तो आएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो -6 है, उसकी जो साइन होगी वही आएगी, माइनस का 4x प्लस का 4y, माइनस के 4y से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 क्या आ जाएगा, -3, और ये वाला +3, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जो 0 है उनको नहीं लिखना है, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर बच रहे हैं वो आंसर में आएंगे। ये एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 और 4 है उसमें भी यही काम करना है, 3 एंड 4। अच्छा 3 में मैं आपको बता दूँ, ये लिखा होगा P + Q + R, तो P की वैल्यू को यानी Q और R, पहले Q की इसी तरीके से सबसे पहले P उतारेंगे, फिर Q उतारेंगे, फिर R, फिर इनको ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में क्या लिखा हुआ है, 3x - 4y - 2z, write the value of x, write the value of x here, then multiply by coefficient, write the value of y, then multiply by coefficient of y, write the value of z, then multiply by 2, all these values, and we got the answer. Finally we subtracting these all values and got a answer. Question number 2, subtract, addition complete हो गई। We solved the problems related to the addition. Now we discuss the polynomial algebraic expression subtraction. Question number 2, in which we subtract both algebraic expression. Question number 2 part 1, what we'll do here, we will subtract both the algebraic expression, 4x⁵ minus 3x³ plus x4 minus 6x² from 6x² minus 3x5 plus 2x⁴ plus 3x³ plus 6. So first expression, this is the second expression. What we'll do here, we will subtract this expression from this expression. So first of all we write the expression after the from. This we will write the expression 6x² minus 3x5 plus 2x⁴ plus 3x³ plus 6. Then we put it down this expression according to the same basis. So first x⁵, where is x5 for? 3x³, write down the same alphabet, x⁴ and minus 6x², minus 6x². Here there is no constant number, so I put it down the 0.
In subtract both the algebraic expression, we will interchange, we will convert the sign plus to into minus. We will change the sign of the second expression, the second term. Here minus, so become a positive, negative, negative, positive change into negative, यानी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं. सब्ट्रैक्ट में ये देखें, जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन होगी उसे ऊपर कॉपी करेंगे और इसको उसके नीचे करके साइन चेंज कर देंगे. +6 + 6 12x², ये साइन अब नहीं रही इसकी. माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7, प्लस के 2 और माइनस का 1, +2 में से 1 गया +1, +3 +3 +6, 6 में से 0 गया 6. ये इसका आंसर. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के आपने पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं. तो 1 से 4 तक हुए. क्वेश्चन नंबर 5, 6 देख लीजिए. 5 है, द सम ऑफ 2 algebraic expression is this: if one expression is 4x y - 3x, find the other. इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, इसी तरीके से, यानी पहली एक्सप्रेशन को उतारेंगे, दूसरी को उसके नीचे उतार के साइन चेंज करके माइनस कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही करना है. फर्स्ट एक्सप्रेशन उतारें, उसके नीचे दूसरी एक्सप्रेशन उतार के साइन चेंज कर दें और आंसर आ जाए. 5 में भी यही करना है, पहली एक्सप्रेशन उतारी, दूसरी उतारी, दोनों के साइन चेंज किए और आंसर निकालें. तो 5, 6 भी इसी तरीके से आपने मुकम्मल कर लेंगे. एडिशन सीख ली और माइनस और सब्ट्रैक्शन सीख ली. पहले डिवीजन देख लीजिए. डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 11 देखें. 11 की तरह कौन कौन से अब आप देखेंगे, मुकम्मल कर लें. 9 से 12 तक तो डिवीजन क्या है. क्वेश्चन नंबर 9 to 12 in which we divide both algebraic expression. So in question number 9 and 10, 9 में आपने क्या करना है, डिविजिबल, यानी क्या माइनस किया जाए कि ये इजीली डिवाइड हो सके. 10 में भी आपने यही करना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड. 11 और 12 में क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज बिकम डिविजिबल बाय a² - 2a + 3. यानी 11 और 12 में k की वैल्यू मालूम करना सारा डिवीजन है. इसमें 8 से लेकर 12 तक इन सब में आपने क्या करनी है, डिवीजन करनी. डिवीजन पे कमांड हासिल कर लें, वो ज़रा समझ लीजिए. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 11 में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करनी है. किसकी वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू. द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन देख लीजिए. 2a⁴ माइनस प्लस 3a³ माइनस 4a² प्लस 13a. आपकी बुक में यहाँ 14 होगा, यहाँ 13 लिख दीजिएगा, सही कर लीजिएगा. इसको डिवाइड करना है किससे, a² - 2a + 3. डिवीजन का रूल समझ लीजिए. सब में यही फॉर्मेट आपने चैप्टर नंबर 4 में भी यही अप्लाई करना है. इसके लिए रफ कॉलम बना लीजिए. इधर देखें रफ कॉलम. अब रफ कॉलम में आपने सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहले उसको देखना तरतीब में कि नहीं, असेंडिंग और या डिसेंडिंग में. 4 3 2 1 0 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. अब इसका फर्स्ट वेरिएबल क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2a⁴. वो लिखा 2a⁴. यानी डिवाइड में लिखे हुए पहली देखें, डिवाइड में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके पहली टर्म क्या है, 2a⁴. उसको डिवाइड करना है बाहर लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a². इसको a² से क्या कर देंगे, डिवाइड. 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी, क्या बच गई, 2a². उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर. फिर उसको इससे तमाम से इस बार वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई. डिवाइड करके आंसर निकाला, ऊपर लिखा, उसको फिर बार वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई. देखिएगा a² माइनस का 2a प्लस का 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले फैक्टर से 2a. देखिएगा 2 1 2, a² a² a⁴ प्लस माइनस माइनस 2 2 4,
ए स्क्वायर और ए की पावर 1 ए क्यूब प्लस 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 2 3 ज़ा 6 ए स्क्वायर, अंदर आपने मल्टीप्लाई क्या आया। अब इसको सेम अल्फ़ाबेट के नीचे लिखें, 2a की पावर 4 को 2a की पावर 4 के नीचे लिखा, 4a क्यूब को 4a क्यूब के नीचे लिखेंगे और 6a स्क्वायर को 6a स्क्वायर। उसके बाद साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 4 प्लस 3 7a क्यूब, माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10a स्क्वायर, ये वाले फैक्टर एज इट इज़ उतार लेंगे, वही स्टेप है। अब फिर देखें कौन सी फर्स्ट वैल्यू, ये रही फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को दोबारा फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, पावर 1 7a, द आंसर इज 7a, पुट इट 8 7a, नाउ मल्टीप्लाई 7a by this expression, 7a into a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस के 3, नाउ मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7 a की पावर 1 और 2 a की पावर 3 प्लस प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 a की पावर 1 और a की पावर 1 a की पावर 2 प्लस 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 7 3 ज़ा 21 हो रही। उसी तरीके से आपने लिख लिया। अब इसको इसके नीचे एज इट इज़ उतार लें, ये साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, प्लस 14 में से माइनस का 10 गया 4a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा जी 8a प्लस के। सेम प्रोसीजर, फिर फर्स्ट वैल्यू को फिर फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें। फर्स्ट वैल्यू क्या है जी 4a स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर 4 लिखा, उसको बार वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3 4a स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करवा दें। जो आंसर आएगा फिर उसको इसी के नीचे लिख देंगे, 4a स्क्वायर माइनस का 8a और प्लस के 12, साइन चेंज किया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा k माइनस के 12। In given question you find the value, you have to find the value of k, so the remainder of the division is k minus 12. So by finding the value of k, we will consider the remainder is equal to 0. Remainder is equal to, what is remainder? Remainder is k minus k 12. So the value of k is equal to 12 by shifting minus 12 into on right hand side. So we get the answer of k is equal to 12. Here the process of division is here, यानी फर्स्ट वैल्यू को बार वाली पर फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसको फिर बार वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। बस ये स्टेप बार बार आपने अप्लाई करना, ठीक है। इसके बाद ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर आपने कौन कौन से कंप्लीट कर ली हो जाएंगे, 9 10 11 12। इसी तरीके से 7 में आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इसी तरीके से वो मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, अगर यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया जाए और अगली ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1, तो पहले ये वाली वैल्यू इससे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें सबसे, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें सबसे, एंड में जाके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आज हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख ली। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिए जितना होमवर्क दिया है उसको समझें, और जो ये डिवीज़न आपको समझाइए इसको पहले खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका आगे यूज़ है 5.7 के अंदर रिमाइंडर थ्योरम वहाँ भी है, तो डिवीज़न उसी तरीके से करनी है। 5.14 के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन डिवीज़न पर आपने ये रफ वर्क के साथ करनी है। जब तक रफ वर्क नहीं करोगे आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर, यानी वीक नंबर 6 की जो वीडियो 6 है, इसके अंदर हमने सिर्फ 6 एक्सरसाइजेस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीक यही 6 ही रहेगा, लेकिन हम उसको वीडियो 7 जब बनवाएंगे उसके अंदर हम
इससे अगली वाली एक्सरसाइज को कवर करेंगे 4.7, 8, 9, 10। इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल हर साल बनता है बोर्ड से। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज से बनेगा वो इसके बाद, यानी 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 उसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश कीजिए इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को समझें। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।